তালিবানী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ বিৱৰণ এবাৰ আফগানী মহিলাৰ মুখত। তালিবানী সেনাৰ আক্ৰমণত দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে আফগানী মহিলাই। তালিবানী সেনাৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছে আফগানী মহিলাই। তালিবানে আফগানিস্তানক বেছি পেলালে, এই মন্তব্য কৰিছে মহিলাগৰাকী। তালিবানে আমাক নিতৌ ধৰ্ষণ কৰে, বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এবাৰ এইগৰাকী আফগানী মহিলাই। বহুত কষ্টত দিন কটাইছো আমি, আফগানী মহিলাগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছে। তালিবানী সেনাই মোক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে, মহিলাগৰাকীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। 2 দশকৰ পূৰ্বে মই দেখিছিলোঁ তালিবানী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, আৰু তাৰ পিছতেই এবাৰ এইগৰাকী মহিলা এতিয়া তালিবানৰ যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী সেইসকলে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, যিহেতু তালিবানী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ বিৱৰণী দিছে এগৰাকী মহিলাই। আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটো, সেই যিটো আচলতে ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, সেই ইণ্টাৰভিউটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়া, ইউটিউব প্লেটফৰ্মত এতিয়া উপলব্ধ হৈছে এইটো ইণ্টাৰভিউ। যিহেতু এইগৰাকী মহিলা আফগানিস্তানত বসবাস কৰিছিলে আৰু তেওঁ আফগানিস্তানৰ এগৰাকী মহিলা, আৰু সেই মহিলাগৰাকী এতিয়া ভাৰতত আহি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ এটাকৈ সকলো কথা কৈ গৈছে। তেওঁ কৈছে যে তালিবানী সেনাৰ আক্ৰমণত এতিয়া দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে মহিলাসকল, যিহেতু আফগানী মহিলাসকলৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰে আক্ৰমণ চলাইছে আৰু তেওঁলোকে বহুকেইটা চৰ্ত বান্ধি দিছে যে আফগানী মহিলাসকল ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে নখত নেল পলিচ ল'ব নোৱাৰিব, গাৰ কোনো অংশ তেওঁলোকে ওলাই ৰাখিব নোৱাৰিব, ভৰিৰ গেৰুৱা পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। যদি গাৰ কোনো এটা অংশ যদি ওলাই পৰে তেনেহ'লে সেইগৰাকী মহিলাকেই হত্যা কৰা হয়। আৰু তাৰ পিছতেই এইগৰাকী মহিলাই এতিয়া সেই স্পষ্ট বিৱৰণী কৰি গৈছে কেমেৰাৰ সন্মুখত। আৰু তেওঁ কৈছে, সকলোতকৈ এটা মহাবিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে তালিবানে আমাক নিতৌ ধৰ্ষণ কৰে। এতিয়া যিহেতু আফগানিস্তানত তালিবানী শাসন আৰম্ভ হৈছে, আৰু তাৰ পিছতেই তালিবানী যিসকল ক্ষমা কৰিব, আৰু তাৰ পিছতে আফগানী যিসকল মহিলা আছিলে সেই মহিলাসকলক প্ৰথমে স্বাভাৱিক ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে, তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা দিছিলে তালিবানীয়ে। সেয়া পূৰ্বৰ ঘটনাৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছোঁ। কিন্তু এইগৰাকী মহিলাই এতিয়া স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মোক নিতৌ তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধৰ্ষণ কৰে, মোক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। মই 2 বছৰ পূৰ্বে, প্ৰায় 2 দশকৰ পূৰ্বে তেওঁ তালিবানী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দেখিছিলে, কিন্তু এবাৰ তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তেওঁৰ ওপৰত উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতেই এইগৰাকী মহিলাক এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে, শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কেমেৰাৰ সন্মুখত কৈ গৈছে এইগৰাকী মহিলাই। যিহেতু এতিয়া আফগানিস্তানত থকা যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে নিজৰ দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে অন্যান্য দেশসমূহত গৈ নিজৰ বসতি স্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এইগৰাকী আফগানী মহিলাই আহি এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত থিতাপি ল'বলগীয়া হৈছে। নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত আহিছে, আৰু তাৰ পিছতেই কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰেই কৈ গৈছে সকলো কথা। কি কৈছে মই প্ৰথমে আপোনালোকক সেই বিশেষ মন্তব্যকেইটা শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। हाँ जी, NCR वाली यही मेरे को रिजेक्ट हो चुका है, और तुम वापस अपने मुल्क मेरे को रिजेक्ट हो चुका है, और तुम मेरे को रिजेक्ट हो चुका है, और तुम वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान जा सकते हो। हाँ जी, NCR वाली यही मेरे को बोला, और मैंने दोबारा अप्लाई किया है, अभी तक तो हमको कुछ पता नहीं, ऐसे बैठी हूँ। तो अभी जो हालात है उसमें वापस जाना चाहेंगे अफगानिस्तान? तो कोई तो हम लोगों से वजह से आप लोगों को पता है कि इस हालत में कोई महिला जा सकती है अफगानिस्तान। महिला को छोड़ दो, कोई जेंट्स या कोई मर्द जा सकती है अफगानिस्तान मरने के लिए। उधर हालत का कितना ख़राब है, कितने सीरियस है, हमारे कितने लोग, और 2 बच्चे जो प्लेन से गिर चुका है वो तो आप लोगों ने देखा। और 3 दिन से हम तो बिल्कुल हालत हमारी ख़राब है। जो अफ़गानिस्तान के सभी
रुकने वालों को, जहाँ हमारी सारी अफ़गानी लोग हैं उधर, उन लोगों का हालत कैसी है, महिलाओं को, बच्चों को, बुढ़े को, जवानों का, सभी का हालत ख़राब। एयरपोर्ट में देखो, एक तरफ से तालिबान उन पर अटैक कर रही है, एक तरफ अमेरिका लोगों का उन पर गोलियां चलाती है, क्योंकि महिलाओं को अंदर, मतलब एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जाने देती है और एयरपोर्ट के बाहर भी। तो वो लोग क्या करें, कहाँ जाए। आप एक बात बताएं, जब तालिबान पहली बार आया था तब का आपको कुछ याद है, वहाँ पे क्या हालात थे? उस टाइम जो मैं तालिबान आई थी, मैं तकरीबन 10 साल की थी, 10 साल की थी, और तकरीबन 25 साल हो गई उस टाइम से अभी तक। वो उस टाइम जो तालिबान आई थी, बहुत ज़्यादा लेडीज़ को मारती और पीटती थी, पत्थरों से संसार करने की वजह से बहुत हालत उस टाइम भी ख़राब थी। और उस टाइम मैं तो इतनी छोटी थी, मैं इतनी डर जाती थी कि मैं बाहर नहीं निकल सकती। इतना बड़ा दुपट्टा, मम्मा बोलती थी कि बेटा अगर तुम कुछ चीज़ लेने के लिए जा रही हो तो दुपट्टा सर पर कर दो, क्योंकि तालिबान तुमको मारेगी। हालत बहुत ख़राब थी। अभी तक तो थोड़ा सा ठीक थी। अभी भी जो तालिबान कल परसों आई है, समंगान और हेरात, मज़ार, खुंदूज, बदख्शान, कंदार, इन लोगों का हालत बिल्कुल ख़राब है। महिलाओं को, लेडीज़ को, जवानों लड़कियों को इंजेक्शन देके बेहोशी की हालत में ताबूत में डाल के पाकिस्तान ले जा रही है। और एक घर में जो मैंने तकरीबन सुबह 8-9 बजे के मैंने फ़ोन किया था अपने फ्रेंड को समंगान में। मैंने उसको हाल चाल पूछने के लिए, मेरी मम्मा का फ़ोन बंद था, मैं परेशान होकर गई। मैं उसको फ़ोन किया, मैंने बोल दिया तुम मेरे मम्मा का नंबर में ट्राई कर दो, इंटरनेट तो उसका बंद है, एक बार मेरे को आवाज़ दे दो कि इसका हालत क्या है, कहाँ पर है मम्मा और मेरे फैमिली क्या किधर है। तो उसने बोल दिया कि उसको छोड़ दो बहन, तुम मेरी बात सुनो कि यहाँ का हालत बहुत ख़राब है, कभी भी मत आओ। मैंने बोल दिया क्यों, अभी तो शांत है, तालिबान बोलती है कि महिलाओं को कुछ नहीं बोलती और जो सरकारी अफसरों है उसको कुछ नहीं बोलती। बोल दिया सब झूठ है, सभी दिखावा है, सब ऐसे दिखाती है लेकिन पीछे पीछे ऐसे नहीं दिखती है। रात में जब इसको गज़मा का टाइम होती है, हर घर में घुस जाती है, लड़कियों को रेप कर देती है। ये हमारे लिए बहुत बहुत बुरा हाल है। अफगानिस्तान, हमारी सारी अफगानिस्तान को भेज दिया इन लोगों ने, हमको बहुत प्रॉब्लम में डाला है। हमारी सारी फैमिलियाँ, सब लोग, पता नहीं कितने मुश्किल में इन लोगों ने 20 साल में लेडीज़ पढ़ाई किया है और अपने मुल्क को बना दिया और ज़िंदगी जी लिया। कौन चाहती है कि इंडिया आए या पाकिस्तान जाए या यूरोप जाए या कोई कंट्री में जाए, जो उसका अपने कंट्री ठीक हो जाएगी तो क्या करेंगे लोग जो निकलने के लिए, क्या करेंगे, क्या वजह होती है। हमारी मुल्क शान से रहेगी तो हम क्या करेंगे दूसरों के मुल्क के आने के लिए, कोई तकलीफ नहीं होती है। और जो लड़की को रेप किया है उसको उसके माँ बाप भाई बहन के सामने उसका रेप किया है, ये इस्लाम नहीं है, ये गैर इस्लाम है। जो बोलते हैं कि ये इस्लाम है, इस्लाम में तो ऐसे नहीं होती है। ये तो मेरे को दे दिया, यहाँ का लेडीज़ मेरे को दे दिया। यहाँ मैं डॉक्टर के पास चला गया, मेरे को डॉक्टर ने समझा दिया और मैं सिलेक्ट दफ्तर से आराज से बहुत पासगुजार हूँ जो उन लोगों ने मेरे को समझाया और मेरे साथ हेल्प किया। और मैंने अपनी सारी जो मेरे फ्रेंड है जो यहाँ लेडीज़ होती है, शरीफा शहाब, जरगुना जी और मीना जी, सबसे मैं बहुत सिपासगुजार हूँ जो हमारी ये फ्रेंड हमारी साथ है, हमको हिम्मत देती है हमको, वरना तो मैं टूट चुकी थी। मैं नहीं, अगर मैं आई भी थी यहाँ तो मेरे ले जाने के लिए बार बार मेरे हस्बैंड आया, मेरे को मारा, मेरे को पीटा, पब्लिक में बहुत हालत ख़राब कर दिया कि चलो मेरे साथ अफगानिस्तान ले। तब हुआ जब तालिबान नहीं था, अब तो मतलब नहीं था। उन लोगों का तालिबान के साथ रिलेशन बहुत कड़क से है। जब से मेरे को मारा था मेरे सारी बदन पर दाग निशान है जो उन लोगों ने मेरे को मारा है। और इधर भी जो गन का बंदूक के साथ मेरे को मारा था, बहुत ज़्यादा मेरे को है। लेकिन मेरे तरह हर लड़की, हर औरत इधर इंडिया में जो आया है अपने बदबख्ती और बेचारिकी की वजह से आया है, कोई शौक़ से नहीं आया है। कोई अपनी जायदाद, ममलकत और अपने मुल्क को नहीं छोड़ देती है। ये मेरे को रिक्वेस्ट है। और हम लोग गवर्नमेंट इंडिया से बहुत खुश है
अल्लाह इंडिया को हमेशा सलामत रहे। तो हमारी दोस्त है, हम गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे सुपासगुजार है हम लोग बहुत ज़्यादा। और हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से और हमारे निसियार से जो हमारे साथी है दोनों, इससे हम चाहते हैं कि हमारी हेल्प ज़रूरी करना पड़ेगा। हम सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारा ज़िंदगी का सोल्यूशन पता लेना चाहिए कि क्यों कितने टाइम हम और इधर रुक सकती है, और हमारी फैमिली उधर है, हम इधर है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है हमारे लिए, क्या मदद कर सकती है। अभी वहाँ की यंग लड़कियों के जो महिलाएं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में डर है कि फिर से पढ़ाई करने के लिए झूठा वोटा कहानी ये लोग बोल रही है, और ऑफिस के आने के लिए झूठा मोटा कहानी बोलती है। जो मैंने खंदार को फ़ोन किया था, खंदार में एक मेरे भाई बोलती है, उसको आया था इधर, एक बिजनेसमैन है, वो आया था इसके लिए, तो इधर इसके फैमिली आया था, डॉक्टर के लिए आया था। मैंने उससे पूछ लिया, उसने बोल दिया कि बहन पहले मैं भी बोलती थी कि मैं एक पश्तून हूँ और तालिबान भी एक पश्तून है, पहले मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अभी जो 2 दिन से मैं देख रही हूँ, मैं अब बहुत रो पड़ी। मेरे को बोल दिया कि मैं अपनी आंसू नहीं संभाल सकती हूँ, इन लोगों का कहर बहुत ज़्यादा है। मैं इतना शर्मिंदा होती हूँ कि मैं अपना जिप निकाल के फेंक दूँ, उसको काट दूँ, क्योंकि मैं इसकी तरह लैंग्वेज बोलती हूँ। मैंने बोल दिया क्यों भाई, किस वजह से? बोल दिया ये इन लोगों ने हर घर में रात में लोगों को बोलती है अपने ऑफिस आ जाओ, अपने ड्यूटी ज्वाइन कर दो, लेकिन रात में जो होती है उन लोगों को चेहरा करके रात में उसकी घर जलती है, उसको या जलाती है या मार देती है, या उसके बुढ़े बच्चों फैमिली के साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रही है। ये क्या फ़ायदा होती है? पब्लिक के सामने एक चीज़ बोल दो और पीछे पीछे दूसरा काम कर दो, ये चलेगी क्या? ये डर नहीं है क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ की महिलाओं का है। महिलाओं का है और उसके फैमिली का, जो गवर्नमेंट में काम करती है, सभी का है। ये जिस बंदे को जो ख़रीद लेती है, तो जो बोलती है सामने, हमको तो कोई यहाँ ख़रीदने के लिए नहीं है। जो मेरे को बोला है फैमिली मेंबर या पड़ोसी आसपास, वो तो मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं था ना, मेरे एक दोस्त था, मैंने उसको हाल चाल के लिए फ़ोन कर दिया, फिर उसने सभी बता दिया कि कभी भी जितना भी मुश्किल हो जाएगी इंडिया से बाहर मत निकल दो यहाँ। और पता है मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरी बेटी 10 साल का है और मेरे जेठ क्या किया है, एक 25 ईयर्स लड़का के साथ उसका मंगनी किया है। मेरे को बोलती है अगर तुम मेरे भांजे को भतीजे को लाती हो तो लाओ, नहीं लाती हो तुम्हारी फैमिली में ज़्यादा लड़की है। मुझसे 5 मिनट का भी नहीं होती है, उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। और ये सब तब है जबकि मतलब तालिबान नहीं था, अब तो आ गया। अभी आ गया है, अभी जब आ गया है उन लोगों का कहर ज़्यादा नहीं होती है। हर बंदे को जो यहाँ आ चुका है उसका तो किसी के साथ कनेक्शन है। जो बंदा गवर्नमेंट के साथ है, अभी तालिबान के साथ हो जाएगी तो वो छोड़ देती है। मतलब मेरे दुश्मन मेरे गवर्नमेंट के साथ थी, पहले कुछ नहीं बोल सकती थी, मैं गवर्नमेंट के साथ थी, वो तालिब थी। अभी जो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएगी तो वो कुछ नहीं बोलती है। और वैसी और लोगों का भी है, और अफगानी लेडीज़ का भी है। मेरे तरह ज़्यादा लोग इधर है इंडिया में जो उसका रिजेक्ट हो चुका है, उसका अपील बंद हो चुका है, उसका केस क्लोज हो चुका है। क्या इन लोगों को जाने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर वापस अफ़गानिस्तान के जाने की इजाज़त है? कैसे जाएगी ये? आप खुद एक पढ़ी लिखी हो, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि कैसे वो लोग जा सकती है? मैं मतलब कैसे जा सकती हूँ इंडिया में? नहीं, अभी की हालत में तो आपने जो अपनी बात बताई, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, अगर मैं 1 साल बाद यहाँ से निकल जाऊँ, अफ़गानिस्तान जाऊँ, तालिबान तो है, मैं कैसे उधर रह सकती हूँ? मैं रह सकती हूँ? अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो अफ़गानिस्तान जाऊँ, एयरपोर्ट पे पहुँचने की वजह से मेरी तैयारी होती है कि इसको संसार कर दो। ये अपने जेब से, अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से चुप के भाग गई है। वो लोग तो यही बोल रही है। मेरे को আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এই আফগানী এগৰাকী মহিলাৰ ইতিমধ্যে মন্তব্য শুনাইছোঁ, যিহেতু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৱৰণী দি গৈছে যে কেনেদৰে তালিবানে ইতিমধ্যে আক্ৰমণ চলাইছে। আমি আপোনালোকক সেয়া দেখুৱাইছোঁ, মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি শুনাইছোঁ। এগৰাকী মহিলাই স্পষ্টভাৱে সকলো মন্তব্য কৰি গৈছে। আফগানিস্তানত কেনেদৰে এতিয়া তালিবানী শাসন আৰম্ভ হৈছে সেয়া স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী মহিলাই।
আৰু তালিবানী সেনাৰ আক্ৰমণত এতিয়া দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে মহিলাসকলে। আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাতৰি আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে এয়াৰপৰ্টত লানি নিচিগা মানুহৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কেনেদৰে লৈ অনা হৈছে যিসকল প্ৰৱাসী লোক আছিলে, আফগানিস্তানত যিসকল প্ৰৱাসী লোক আছিলে, সেইসকল লোকক কেনেদৰে আচলতে লৈ অহা হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। আৰু তাৰ পিছতে এইগৰাকী মহিলা এতিয়া এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে, স্পষ্টভাৱে সকলো কথা কৈ গৈছে। আৰু তালিবানী সেনাৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছে এগৰাকী আফগানী মহিলাই। আৰু তালিবানে আফগানিস্তানক বেচি পেলালে বুলিও মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী আফগানী মহিলাই। আৰু তালিবানে তেওঁলোকক নিতৌ ধৰ্ষণ কৰে, এই কথাটো স্পষ্টভাৱে তেওঁ কৈছে। যিহেতু তালিবানে যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী আছে, সেই তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বহু চৰ্ত ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা চৰ্ত মহিলাসকলৰ বাবে ধৰি দিছিলে। আৰু যদি এতিয়াৰে পৰা যদি আফগানিস্তানত আপুনি বসবাস কৰিবলৈ হয়, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমে মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। বেলেগ ধৰ্মৰ লোকো যদি তাত বসবাস কৰে, প্ৰথমে আপোনালোকে মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু মুছলমান ধৰ্মৰ যি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা সকলো আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব। আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বহু তথ্য ইতিমধ্যে দিছিলে, বহুকেইটা ইতিমধ্যে বাধ্যবাধকতা ধৰি দিছিলে তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ ফালৰ পৰা। আৰু তালিবানে এতিয়া আফগানিস্তান দখল কৰিলে। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া তালিবানী যিসকল মহিলা আছে, ক্ষমা কৰিব, যিসকল আফগানী মহিলা আছে, আফগানী মহিলাসকলৰ ওপৰত এতিয়া উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদী। ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাই সবিস্তাৰে সকলো বিৱৰণী ইতিমধ্যে কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক যিটো ইণ্টাৰভিউ দেখুৱাইছোঁ, সেইটো ইণ্টাৰভিউতে সকলো কথা ইতিমধ্যে কৈ গৈছে। আৰু তালিবানী সেনাই ইতিমধ্যে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ চলাইছে, শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ চলাইছে বুলি জনাইছে এইগৰাকী মহিলাই, যিগৰাকী মহিলাই এতিয়া আফগানিস্তানৰ পৰা আহি ভাৰতত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে নিজৰ জীৱন বচাবৰ বাবে। আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে 2 দশকৰ পূৰ্বে মই তালিবানী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দেখিছিলোঁ, কিন্তু এবাৰ তালিবানে আমাক নিতৌ ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এগৰাকী মহিলাই।